ابھی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تازہ ترین میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے کہا جی 4 مہینے بڑے فیصلے, یہ پی ٹی آئی کے جو بڑے فیصلے ہیں ان کی ٹائم لائنز جو ہیں یہ ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہیں, اسٹریچ ہوتی رہتی ہیں. بہرحال اب 4 مہینے پہ آ گئی وہ بات, سنیے جی کیا کہا. ٹیم میں جو تبدیلیاں ہیں انہوں نے پہلے ہی اس کا عندیہ دے دیا تھا, اور جو ان کی اس وقت پرائم منسٹر صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ جیسا میں نے پہلے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان 6 مہینوں میں آپ نے اگلے جو 2-3 سال ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ واضح کر لینا ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ آپ لمبا سوچ سکیں, کام کر سکیں. تو یہ جو 4-5 مہینے ہیں یہ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے فیصلوں کے مہینے ہیں. بڑے فیصلوں کے مہینے ہیں. میرا خیال ہے صابر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ جو بڑے فیصلے ہیں ان کی کس قسم کے فیصلے ہیں, ان کی کوئی تیاری ہو رہی ہے, ہوم ورک ہو رہا ہے, یا پھر وہ دیکھیں گے جب وہ موقع آئے گا تب وہ فیصلے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ 2 سال آپ کو پتہ پورے ہو گئے ہیں, اگلے مزید ان کے پاس 2 سال ہیں, اور اس کے اگلا سال جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا. تو اس کے لیے یہ جو اب تک ان پہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اور اتحادی جماعتوں کے وہاں بین بھی جو ان کی آپس میں رفٹ چل رہی تھی, الیکٹڈ نان الیکٹڈ, ملکی غیر ملکی, یہ جو جھگڑا چل رہا تھا وہ کافی بجٹ نائٹ کے وقت بہت زیادہ عروج پہ تھا. تو اس میں براہ راست عمران خان تک لوگوں نے پہنچا بھی دیا کہ ان کے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو ہمارے نہیں لگے ہوئے. یہ بول سکتے ہیں تو ہم بھی بول سکتے ہیں, بڑی بڑی وزارتیں ان کے آپ نے حوالے کی ہوئی ہیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اب میرا خیال ہے کہ ایک تو ایس اے پی ایمز جو ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گے, اور نان الیکٹڈ کم کیے جائیں گے, کچھ کر دیے گئے ہیں, کچھ عید کے بعد کر دیے جائیں گے. ابھی اور کتنے لوگوں کے نام زیر غور ہیں؟ تو یہ عید کے بعد میرا خیال ہے مزید ری شفلنگ ہے. تو اس دوران یہ فواد چودھری صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو بھی ٹیم تیار کی جائے گی وہ اگلے 2 سال, 2.5 سال, 3 سال لاک کر رہے, پکی ٹیم بنا رہے ہیں, یہ لاک کیے جائیں گے. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے اگلے 2-3 مہینے ذرا کروشل ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ کس کو لے کے آتے ہیں, اور اس کے بعد اب اگلا جو سٹیج ہے کہ باقی جو ایس اے پی ایمز بچے ہیں وہ خود جاتے ہیں یا ان سے بھی استعفے لیے جاتے ہیں, کیونکہ دونوں کیٹیگریز, ظفر مرزا صاحب نان الیکٹڈ, کارکردگی پوری وزارت دی گئی, اور وہ بغیر اختیار کے وہ فائنانس کے امور بھی دیکھتے رہے. اس کے بعد تانیہ جو ہیں وہ غیر ملکی پلس کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب یہ دونوں کیٹیگریز کا ایک بندہ انہوں نے فارغ کر دیا ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے باقیوں کو بھی میسج دیا ہے کہ آپ خود ہی یہ جا سکتے ہیں, تو جی آپ خود بھی نکل ہی جائیں, بجائے اس کے کہ آپ کو پی ایم آفس میں بلایا جائے اور اعظم خان صاحب بلائیں اور انہیں کہیں کہ ذرا پلیز یہ سائن کر دیں ایک پیپر پہ, اور ان کو واپس جانا پڑے. اس لیے کل میں سن رہا تھا ڈاکٹر معید یوسف کی گفتگو, وہ بھی کچھ اکھڑے اکھڑے سے اسی لیے لگ رہے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں بڑی کلیئر ہیں, اگر وہ پسند نہیں ہے تو آپ تبدیل کر دیں. اور اگر ایک غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والے کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہے, پنجاب کہہ رہا ہوں صوبائی اسمبلیوں میں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں ہے, پاور کوریڈور میں وہ کیبنٹ میں نہیں جا سکتے, نہیں ہے اجازت, اہم میٹنگز میں بیٹھنے کی پتہ نہیں اجازت ہے کہ نہیں ہے, بالکل نہیں, کیبنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, جب یہ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ان کو رکھا کس لیے؟ یہاں تو فائلوں پہ سائن ہو رہے ہیں نا, مطلب جو وزارت کے اوپر یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ اور لیڈ. اگر سائن نہیں ہو رہے تو پھر جو بھی سائن کر رہا ہے but someone should be accountable for it. اصل ایشو یہی ہے کہ معاون خصوصی کا درجہ کی اپائنٹمنٹ ہے اور وہ وزارتیں چلا رہے ہیں, کیونکہ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کا نیم البدل ایس اے پی ایم نہیں ہے. پھر اس کے لیگل ایشوز آئیں گے, اس کے اسٹرکچرل ایشوز آئیں گے جب کل کو بات ہوگی. کلاسر صاحب اب 2 سال بعد جو ہے جو بھی ان کا آؤٹ پٹ ہے, جو بھی ان کی کارکردگی ہے, اس پہ تو ان کا اپنا ووٹر بھی ان سے بات پوچھ رہا ہے. ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں سے سوال نہیں ہو رہا, وہ پوچھ رہے ہیں. اب کتنی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم میں تبدیلی خان صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہوگی؟ ویژن امپلیمنٹ کرنا ہے تو بار بار تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. پہلے تو میرا خیال ہے خان صاحب کا جو ویژن, ان کے 2 قسم کے ویژن ان کے کہہ لیں. ایک حکومت میں آنے سے پہلے ویژن تھا, ایک حکومت میں آنے کے بعد ہے, اور دونوں میں میرا خیال ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اب تو وہ ان کی پارٹی بھی ناراض ہوتی ہے کہ جو بھی ایشو پہ بات کرتے ہیں دوسرے دن
क्लिप आ जाती उनका कोई ना कोई क्लिप आता है पूरी। आप कह सकते अपोजिशन को कुछ नहीं करना पड़ता, अपनी ही अपोजिशन जो है ना इमरान खान अच्छा, साहब हम खुद भी है, नहीं मेहनत करते, हम वही क्लिप निकाल लेते हैं, हम कहते हैं अपोजिशन की क्यों ढूंढते हैं। वो आर्काइव्स में पड़े हुए हैं ना क्यों सबके ढूंढते हैं? पास। अच्छा, ये बात उनको समझ नहीं आती कि आर्काइव्स में तमाम चैनल्स ने ये चीजें इमरान खान साहब के नाम से एक एक टॉपिक उन्होंने रखे हैं, बिल्कुल मेरे को 15-20 मिनट बाद उसके बाद पूरे मुल्क में एक सर्च डाले वो आ जाता जाते है। हैं। और इसी वजह से मीडिया ज्यादा भी मेरा ख्याल है उनकी नजरों में आया है कि देखें जी हमें खराब कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरी बात जो अभी साबिर ने की है वो बड़ी उस पर अहम है कि अभी जिन लोगों को फारिग किया फॉर वट एवर रीजंस, मैं उसमें नहीं जाता फिलहाल कि उसके पीछे भी रीजनिंग साफ ज़ाहिर है। आपने वो ऐसे लोग फारिग किए जो शायद वो मैटर नहीं करते इमरान खान साहब के लिए, वो कोई बिग गन्स नहीं है, कोई भी उसमें क्या कोई उनका क्लाउट नहीं है। अच्छा, क्लाउट भी नहीं है, चलो पॉलिटिकल नाम भी जो नहीं, फायर किए जा सकते थे आसानी मेरा से। ख्याल है कि वो इजी टारगेट थे। अगर आसानी मुझसे से पूछें किए इजी टारगेट थे, दोनों भी थे इजी, उनका कोई लॉबी नहीं थे, कोई क्लाउट नहीं था। अच्छा, उन पर कुछ चीजें भी आ रही थी, मैं फिर कह रहा हूँ मैं उसमें नहीं जाता। सो इजी थे उनको हटाना कि हटाएं जी, हट गए वो जो चीजें। असल चीज ये है जो उन्होंने तानिया साहिबा ने ट्वीट किया है, अगर उसको लेके आगे चलें, उसमें वो ये कहते हैं कि मेरी फॉरेन ये नेशनैलिटी का इशू था तो उसी वजह से मैं क्विट कर रही हूँ, उन्होंने ये दिया। अगर फॉरेन नेशनैलिटी का इशू था और जो जैसे ये साबिर भाई कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी ने बुला के उनको कहा है कि आप लोग इस पर रिजाइन करें, और फॉरेन नेशनैलिटी का जो बड़ा टेस्ट आएगा अगर वही इशू है वो तो जुल्फी बुखारी साहब पे आता है। अच्छा, नदीम बाबर साहब पे आता है। अब अगर खान साहब ये सीरियस हैं टीम चेंज करने में, और अगेन वो कहते ही मीन्स बिजनेस, तो टेस्ट है उनका, ट्रायल है। अच्छा, फिर उस पर नदीम बाबर साहब भी चले जाएंगे, उनकी भी ये आ रही है कि कुछ अरसे से आ रही हैं खबरें कि वो भी उन्होंने भी जाना जूना है, बल्कि एक दो और लोग भी टारगेट पे आए हुए हैं, शायद वो भी चले जाएं। मैं अभी से एक दो का नाम ही ये शायद आपको पता होगा सबको। अब सवाल जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा ये इमरान खान साहब के लिए कि बाकी सीरियस है, वो जुल्फी बुखारी साहब हैं। और जुल्फी बुखारी साहब जो है जैसे कह रहे हैं स्पेशल ये असिस्टेंट, और सुप्रीम कोर्ट में बकायदा बताया गया था कि जनाब ये कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं बैठेंगे इनमें से कोई। अच्छा, वो आके कहते स्पेशल इन्विटेशन, चलो स्पेशल इन्विटेशन एक एजेंडे पे होती है, चलो दो पे एजेंडा आइटम हो, एजेंडा आइटम हो। लेकिन सर कानूनी तौर पे तो ये तो उन्होंने अपने बकौल उनके मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया ना, कानूनी तकाजा तो कोई नहीं है ना कि कोई डुअल नेशनल है तो वो इस्तीफा दे या वो इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, कानूनी तो कदगन नहीं है ना। वैसे कैबिनेट अटेंड नहीं कर सकता, ऑन इन्विटेशंस तो वो करते हैं, ऑन इन्विटेशन एक दफा वही काश्मीर का वो होता है कि कोई उनका एजेंडा है या किसी पे ब्रीफ करना है, उन्होंने ब्रीफिंग देनी है, ब्रीफिंग दे के जाएं, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आते कैबिनेट में, ये है असल इशू। लेकिन डुअल इशू के ऊपर तो ये तो उनको फेस सेविंग दी गई ना, ये तो फेस सेविंग थी। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई आप खुद इस्तीफा दे दें और आप ये कर लिख दें, मैंने खुद आपको खबर दी है कि जनाब इससे इस्तीफा लिया गया तो बाद में उन्होंने किया ना, और उसमें बाद वो ट्वीटें भी करें कि ये मत चलाइए, देखिए ना ये आपने खबर देने के बाद भी कहा प्लीज ये ना चलाइए, वो ये कंफ्यूजन है ना जो भी इनके इसमें जो उसमें आ रही है ना इंटरेस्टिंग इसमें चीजें हैं जो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के ऑफिस का एक बड़ा नया कल्चर डेवलप हो रहा है। पहले हम मोहब्बत से लोगों को ले आते हैं, अच्छा चले वो रिजाइन कर देते हैं, आपने ले लिया, अब या तो उनको डी नोटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद वो खबरें भी चलवाई जाती हैं उन्हीं को खराब करने के लिए, उन्हीं लोगों को जिनको आप लाए थे। मतलब कल से मैं देख रहा था, इन्हीं पे हमें भी एतराज होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे एतराजात हो सकते हैं कि पल आपको याद होगा फिरदौस आशिक अवान साहब के साथ ये कुछ हुआ, फिर उन्होंने कोई अच्छा आमिर कियानी के साथ भी ये कोई, उसके रीजन क्या होते हैं, खुद आप बड़े अच्छे तरीके से बुला के इस्तीफा ले लेते हैं, गुडी गुडी खेल लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो मीडिया में ना उसके बाद कहते हैं इनकी फलां 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 एक्ट्स जराए के क्या होना चाहिए, आप में इतनी मॉरल करेज एज ए लीडर होनी चाहिए। इफ यू थिंक कि आपकी टीम का बंदा गलत कर रहा है, फिर उसको डी नोटिफाई करें, फिर उसको आगे रेजिग्नेशन का उसको ऑप्शन मत दें, उसको डी नोटिफाई करें। फिर ज्यादा आप समझते हैं कि इन लोगों ने गलत चीजें की हैं, फिर उनको चार्जशीट करके प्रेस रिलीज भी तो जारी करें ना कि जनाब ठीक है हम लाए थे, इन्होंने आके और मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ना, ये ना हो कि बस निकाल दिया तो जी बात खत्म। चीज जो कल अभी आपने बात की, मंतकी अंजाम का हर किसी का एक ही अलग अलग है ना। इसका मुईद भी आपने मुईद यूसुफ की बात की कल जो उन्होंने बड़ी आके, मतलब ये लोग वहां बहर से पढ़ के हैं, जरा अंदाजा करें बहर के लोग हैं, उनकी मीडिया फ्रीडम के हवाले से कंसेप्ट आपने कल नोट किया है। और ये बात ये मुईद साहब को समझनी चाहिए कि सवालात हमने तो शायद बाद में खड़े किए हैं, इनके अपने कुलीग्स में नाम लेता हूं, उन्होंने टीवी चैनल्स पे बैठ के कैबिनेट में बैठ के इन लोगों पे एतराजात देखें जी, गुलाम सरवर खान साहब, चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, इन लोगों ने इनको टेकन किया, इमरान खान साहब, और जो नहीं वो सारी शुरुआत तो इमरान खान उन्होंने हम पे डाल पहले खुद की है कि अपनी किश्तियां जला के आए, वो लोग नहीं आए जो लोग जिनका इंटरेस्ट उसी नैरेटिव के हॉस्टेज है ना। और वो हमसे नाराज है। मुईद साहब तो इतनी जुर्रत है ना, मुईद साहब में, मुईद यूसुफ साहब में, हजूर ये बंदे आपकी कैबिनेट में बैठे हैं, वो कहते हैं घोड़ा भी है, ये मैदान भी है, तलवार भी, अगली कैबिनेट मीटिंग में चढ़ जाए इन पर तमाम 3-4 पे भाई साहब आपको जरूरत क्यों हुई, आपने हमारे बारे में ये बातें कि हम फॉरेन नेशनल है, बैग उठा के निकल जाएंगे, खान साहब को डांट दें। अच्छा, एक और बात है काशिफ, मुझे एक ट्रेंड नजर आ रहा है, देखिए ना, हटाने का, इनकॉम्पिटेंस के ऊपर एक्शन लेने का क्रेडिट फौरन से पहले ले लिया जाता है,
फेयर इनफ, आपको लग रहा है इट्स नॉट वर्किंग, आपने हटा के टीम चेंज कर दी, तो फिर लगाने की भी तो किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन होती है ना, कि भाई ये लगा, एक दफा गलत हो गया, दूसरी दफा भी गलती हो गई आपके, फिर आपसे गलती, यू नो, ये मुझे एक्सप्लेन करें ना। देखिए, मैं राउत साहब ने पहले ही आपके सवाल को क्वालिफाई कर दिया। अच्छा, इसलिए मैंने जरा इसका एक ही जवाब है, मैंने इसलिए मजीद कॉन्फिडेंस से जरा दोबारा पूछा सवाल है, दैट्स द रीजन, और अच्छे बंदे से पूछा। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं, कल का मेरी प्रोग्राम जो मैंने जब किया, जब ये इशू आया, तो मेरा पहला सवाल ये था कि आप इसको इनकॉम्पिटेंस कहेंगे या गुड मैनेजमेंट कहेंगे, कि आपने एक बंदा लगाया और वो नहीं चला और आपने कहा यार मैंने इसको चांस दिया, ये नहीं चला, बट डू यू नॉट नो कि किसको लगाना चाहिए? एक दफा इज ओके, ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये हर सेक्रेटरीज के साथ ही हो रहा है, एफबीआई चेयरमैन के साथ ही हो रहा है। देखिए, इस केस में लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो इस हुकूमत का है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस दो फ्रंट्स पर। एक तो इनका गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, दूसरा इनका ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करने का कोई एक्सपीरियंस माजी में सवाए केपी के नहीं है, जिसपे एक आजम खान साहब आए हैं और उनकी अपनी पार्टी आजम खान साहब के बारे में क्या सोचती है आप मेरे से ज्यादा बेहतर। यानी एक वुज़रा का ग्रुप बन के गया था प्राइम मिनिस्टर के पास शिकायत लेके, किसके खिलाफ? आजम खान साहब के खिलाफ। पर वो हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की लगती है, हर किसी की लगती है। इससे पहले वाले फवाद साहब की भी ऐसी शिकायतें लगती जी, लेकिन इस केस में उनके दामाद कहते थे एक मुख्तलिफ चीज भी है। इस केस में प्रॉब्लम बहुत से लोगों को यह है कि आजम खान साहब की जिससे नहीं बनती, फिर आजम खान साहब उनको निकलवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। इन्होंने आमिर कैनी साहब की बात की, मैं कल परसों वसीमत आमी के प्रोग्राम में ये बात की थी कि पीटीआई का एक ओवरवेलमिंग मौकफ है ये, वो आमिर कैनी को गलत नहीं समझते, जो होता ना कि अब वो एक मशहूर हो गया कि उनका वोटर नहीं समझता, उनकी केडर नहीं समझता, और उनका जो पार्टी है वो कहती है कि ये, और आमिर कैनी साहब खुद भी ये समझते हैं कि उनका झगड़ा हुआ आजम खान के साथ, फिर रिपोर्टें बनी, उनके खिलाफ बनाई गई, जिसकी वजह से फिर बाद में जाहिर है इतनी उनको निकालने के बाद करप्शन चार्जेस पे, हाँ चार्जेस पे निकालने के बाद उसको दोबारा वजीर नहीं था बनाया जा सकता। तो अगर आप ये देखें कि उसको कहां एडजस्ट किया गया, उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। बाद कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी कंसीड किया है, एटलीस्ट अंदर की खबर यह है कि शायद उसके साथ इस वजह से जाती है। सो फवाद ये नहीं कर सकता था कि अपनी पार्टी के खिलाफ आईबी से रिपोर्टें बनवाए या ये करे। इस केस में बहुत सी पार्टी के सीनियर लोग कहते हैं कि ये काम होता है इस पार्टी में। आ जाए वापस डिसीजन मेकिंग के ऊपर, देखिए अगेन लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आई विल कॉल इट लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, बट मुझे लगता है कि खान साहब ये फैसले सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं इससे बाहर निकल जाए, बट मुझे इससे एतराज कोई नहीं है। लेट मी बी ऑनेस्ट इन सेइंग दिस। ये रैपिड चेंज से जो बार-बार मुझे इसलिए एतराज नहीं है कि ये वो लोग हैं जो टेस्टेड नहीं है। आप वजारतों की बात कर रहे हैं, आप निजाम चलाने की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि मुझे याद है जब ये हुकूमत आई थी तो पहला आर्गूमेंट क्या था इसके खिलाफ? पहला आर्गूमेंट यह था कि जनाब इनएक्सपीरियंस लोग हैं। दूसरा यह था कि बाहर से लोग सारे लेके आए। हर किसी ने अपना व्यू रखा हुआ था कि यार ये क्या, ये तो नई तरीके इंसाफ की तरह, ये तो सारे पुराने ले आए जिनको एक्सपीरियंस है। सो जब नए लोग लाएंगे, नए लोगों के साथ आपको ये प्रॉब्लम जरूर होगी कि वो निजाम को समझने में, निजाम के साथ चलने में बड़ा। मुझे एक वफाकी वजीर ने बताया नून लीग के, उसने कहा जनाब अगर आप 6 महीने में अपनी मर्जी का सेक्रेटरी लगा के काम समझ लेना अपनी वजारत का, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इसमें है। लेकिन इस केस में खान साहब का एक प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी फैन फेयर के साथ लोगों को लेकर आते हैं। तानिया आई तो आपको याद होगा क्या क्या तकरीरें की उन्होंने। देखिए आप लोगों को उनकी, और WHO से मिर्जा साहब आए, उनका बाकायदा इस्तकबाल लाइव इवेंट रखा उनकी शान में लाइव टेलीकास्ट हुआ, उनकी तारीफें की कि जी कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। सो आई थिंक he has no governance नहीं, बट माय पॉइंट इज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं काशिफ, क्या स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए बिकॉज ये दूसरी दफा वजीर सेहत चेंज हो रहा है 2 साल में। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं बेटा दूसरा आर्गुमेंट यही है ना जी, पहला ये है कि इनके पास गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इनको नहीं पता कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आप जब इतनी फ्रीक्वेंटली लोग चेंज करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस की स्पीच में कहा था कि 1 साल में अगर आप 13 CEO 10 साल में बदलेंगे तो कैसे इदारा चलेगा। He has to realize कि अगर आप इतनी फ्रीक्वेंटली ये चेंजेस करेंगे तो इदारे कैसे चलेंगे। तो साहब का याद होगा जिस वक्त हमारी पहली ब्रीफिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, दिस इज बात 2 महीने बाद, जब प्राइम मिनिस्टर नाराज हो गए थे सबसे, और तो पहला सवाल बाय चांस मुझे कहा गया पूछने का, और उस टाइम ग्रोव साहब आपको याद होगा माय फर्स्ट क्वेश्चन, सर आप तैयारी करके, आपको तो पता ही नहीं करना क्या। अच्छा, आप भी तैयार नहीं थे उस सवाल के लिए। मजे की बात, वो खान साहब ऐसे एंटर हुए, सारे लोग खड़े हो गए क्योंकि अगेन उसके लिए एहतराम के लिए खान साहब ने किसी से हाथ नहीं मिलाया, हालांकि सारे दोस्त थे। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि खान साहब आएंगे, हाथ मिलाएंगे, मुबारकबाद देंगे। अच्छा, बैठते पता उन्होंने क्या किया, जरा इससे आई एम सॉरी बात काटो, काशिफ ने जिक्र कर दे। बैठते ये सारे थे, साबिर भी थे, काशिफ और भी बहुत सारे दोस्त थे हमारे। बैठते उन्होंने कहा अगेन
ہم توقع کر رہے تھے تھوڑا سا کوئی ایک انٹروڈکشن، کوئی تھوڑی سی کوئی اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ کیا یار، کیا حال ہے، کیسے ہے، کوئی اور کوئی ہم بھی مبارکباد دیں گے. وہ خیر ہاتھ نہیں ملایا، بیٹھ کے سب سے. انہوں نے پہلے کاشف سے پوچھا، کاشف صاحب یہ ریلیکس کر کے بیٹھے تو انہوں نے کہا جی کاشف پوچھیں کیا پوچھنا ہے. اب کاشف کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا پوچھوں. اچھا کاشف سوال کے لیے تیار نہیں تھا. ان کا سوال سنیں ذرا. انہوں نے کہا خان صاحب لگتے ہیں آپ اس کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ حکومت کے لیے تیار نہیں تھے. یہیں سے شروع ہوا میرا خیال ہے. یہ سوال کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آگے سے حکومت کے لیے تیار نہیں تھی. مجھے بریک لینی، یہاں پہ واپس آئیں گے. اس کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. پورا ہم نے ایک پکچر تو دیکھ لی کہ بھئی پی ٹی آئی ابھی تک کہاں ہے، آگے کیا ہے.